عورتیں کافی تعداد میں باپردہ خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں. مولانا سمر صاحب تقریباً اس طرح کی گالیاں دے رہے تھے کہ وہ بیان کرنے والی نہیں. رکو ذرا صبر کرو. سال ہو گئے بابے شاہ کو نہیں بابے. او تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا. تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا. تیرا ابا کمزوری دا ماریا کوئی اور کام پا گیا اسی کی کر لئیے. یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جڑا ہر بکرے نو راضی رکھ دے. پھر بکرے سارے پتہ کی کہندے نے بہت اچھی ہے اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے یہ سب کو خوش رکھتی ہے سب کے پاس جاتی ہے. 1 hour later. تسی بابے علی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا. تو شرم نہیں تینوں ہے؟ تینوں شرم نہیں ہے؟ نہیں تو کیوں تو شرم نہیں؟ تو یہ تو ہونا تھا. یہ ہونا تھا. اگر 3G پاکستان میں اگر آ گیا نا جس دن 2 سال بعد پاکستان بدل جائے تو میں سوچتا رہا پتہ نہیں کیا ہوگا 3G کہ 2 سال میں پاکستان بدل جائے گا. آج اس کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. جب یہ 3G نہیں تھا نا تو لوگوں کی عزت محفوظ تھی. ہمارے معظم دینی جو ہے نا ان کی عزت محفوظ تھی. لیکن اب کوئی ایک بتاؤ کہ جس کی عزت محفوظ ہو. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے جو دکھنے میں تو انسان ہے لیکن ان کی باتوں سے نہیں لگتا کہ وہ انسان ہے. وہ کہتا ہے ذکر نلائک نعوذ باللہ. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں تیرے تو بڑا ذکر نلائک بلکہ ذکر نلائک آیا سی. او نہ ریا پتر. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر. جب یہ 3G نہیں تھا نا تو لوگوں کی عزت محفوظ تھی. اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا زبردست ہے. گالیاں نہیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے وہ الگ بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں. اچھا اب اللہ کے بندوں مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تشائی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا نا. جو مفکرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں مطلب وہی ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے. اور یہ چونکہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عروج دے گا کچھ کو زوال دے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے صیغے میں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ جواب شکوہ کا شعر. حدیث میں تو یہ نہیں تھا. حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا. مستقبل کی خبر تھی. ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا کلونین پاورز نے کیا ہم نے خواری تو کاٹ لی ہے. تو اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ جواب شکوہ کنکلوڈ ہوا ہے نا. دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. علامہ اقبال بول کے ڈگری سی دسو نا. تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں. علامہ تو وہ نہیں تھے وہ تو ڈاکٹر تھے. فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے.
बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल के ऊपर आपके सामने बयान किया है, तो डॉक्टर इकबाल ने भी वैसे बयान नहीं किया कि आपको आयात या हदीस के कोई हवाले बताए हों, लेकिन उन वाले तक अल्लामा इकबाल कहते हैं, उन्होंने कहना छोड़ दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि अगर तूने मेरे नबी के साथ वफा की ना ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तेरे हो जाएंगे। और ये दुनिया तो कोई चीज नहीं, लोहो कलम पे भी फैसले फिर तुम्हारी दुआओं के ऊपर होंगे अगर तुम मेरे नबी के वफादार रहे। अब ये कुरान और हदीस में इन अल्फाज के साथ तो कहीं बात मौजूद नहीं, लेकिन पूरे कुरान और सुन्नत की थीम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लिहाजा वो हदीस कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं, ये हदीस पढ़ के इसकी जब थीम बयान करे इंसान, उन लोगों को समझाए कि जिनकी माएँ कहती हैं कि अगर तूने दाढ़ी ना कटाई तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और जबरदस्ती वो बच्चों की दाढ़ियां मुड़वा के अपने लिए भी जहन्नम का सबब करती हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम में धकेलती हैं, और अपनी बच्चियों का हिजाब उतरवा देती हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, और बाद में भी जो मिलते हैं रिश्ते वो भी जो गंद खाते हैं बाद में वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे मां बाप को फिर हम ना सुनाएं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है, तो सीधे शाही कोई नहीं। मां बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अगर मां बाप अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं, फिर इन मामलात में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, दुनिया में मारूफ तरीके से आपने चलना है, ह्यूमन डिग्निटी वायलेट नहीं होगी। वो तो सूरह लुकमान में आया है कि अगर वो शिर्क का कहें तो तुमने नहीं बात माननी, लेकिन दुनिया में मारूफ तरीके से चलना है। और सही बुखारी में हदीस है, हजरत अबू बकर की एक बीवी काफिरा थी, अस्मा बिनत अबी बकर की वालिदा, हजरत आयशा की जो बड़ी बहन थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे पास आती है और वो मुशरिका है, तो क्या मैं उसके साथ उसने सलूक करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम उसके साथ उसने सलूक करो। इन दुनिया में आपने मारूफ तरीके से मामलात को लेके चलना है, सीधी सी बात है। इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो आप जिसकी भी चीज को काटते रहे, इसका तो कोई एंड ही नहीं होना, आप जो मर्जी करते जाएं। लेकिन आपने फर्क देखा, हमारे स्टूडेंट्स ये हरकत किसी के साथ नहीं करते, और हमारे मुखालफीन करते ही यही हैं, और अपना लुकमा उसके मुंह में दाखिल करते हैं, और फिर कहते हैं जी जुडिशरी से केसेस क्यों फारिग हो जाते हैं। यार, जुडिशरी में जो लोग बैठे हुए हैं वो मुलवट्टे तो नहीं है। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अली भाई जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं, और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो, ख़ास तौर पर अली भाई की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा होगा, उसको ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ अर्सा पहले मुफ्ती समर के साथ जो एक वाक़या पेश आया था, जो कि वो एक महफिल में बैठे थे और वहाँ पर वो इंजीनियर को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, और वहीं से एक शख्स उठा था जिसने जो है उठकर उस शख्स को जो है, यानी मुफ्ती समर को जो है वो चुप करवाया था कि जो ये तकरीर कर रहा है उसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस जो है वो हमें किसी को गालियाँ देना नहीं सिखाते, और ना ही किसी के माँ बाप पर अटैक करना सिखाते हैं। और फिर उस शख्स ने जो है वहाँ पर हंगामा हराई की और कहा कि जो ये दीन का काम कर रहा है ये कोई दीन का काम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भड़ास जो है वो इंजीनियर पर उतार रहा है। तो उसके कुछ क्लिप्स तो हमने देख लिए थे, लेकिन कुछ क्लिप ऐसे भी थे जो हम तक नहीं पहुँचे थे। तो हमने सोचा कि आज जो है वो क्लिप जो है वो आप लोगों को सुनाए, और जिस मौलवी ने मुफ्ती समर को रोका था उसके बारे में, और उसने इसके बारे में क्या कहा वो भी हम आपको दिखाए। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में उसकी वीडियो दिखाई, और उसने बताया कि उस महफिल में जो है औरतें भी बैठी हुई थी, और इस बदबख्त ने, मुफ्ती समर ने, जो कि मरासी कहलाता है अपने इलाके में, और पता नहीं इसको अलामा किसने बनाया है, उसकी जो ज़बान यूज़ की, उसकी वीडियो भी जो है, उसका क्लिप भी जो है वो हमने आपको वीडियो में दिखा दिया। यानी औरतों के सामने बैठकर वो इस तरह के घटिया अल्फाज यूज़ कर रहा है, जो कि हम अपने मुंह से निकालते हुए 100 बार सोचते हैं, वो भी किसी अलामा के लिए या उस शख्स के लिए जो कुरान इस्लाम की खिदमत कर रहा है। तो नाजरीन, आप लोग देख सकते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बुक्स में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि ये मिंबर रसूल पर, जहाँ पर कुरान और हदीस के अलावा कुछ और डिस्कस नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ये बैठकर लोगों को नंगी नंगी गालियाँ देते हैं, और ये भी नहीं देखते कि हमारी तकरीर जो है वो कल को कोई औरत भी सुनेगी, या फिर अगर यही उस मौलवी के वालिद सुन लें या उसकी माँ बाप सुन लें जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं, तो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी। लेकिन इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने चंदों से जो है वो गर्ज होती है। जब तक इनको चंदे मिलते रहेंगे, इनकी ज़बानें जो हैं वो चलती रहेंगी। जब इनको चंदे देना लोग बंद कर देंगे तो इंशाल्लाह इनकी ज़बानें भी बंद हो जाएंगी।
तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, मुफ्ती समर वाकई ही कोई मौलवी है या फिर इसने मरासियों का कोई कोर्स किया है और मरासी जो है वो इसी तरह जब बोलने के काबिल हो जाते हैं तो इस तरह के मरासियों को जो है वो स्टेज पर बुलाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक अलामा में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई मरासी है या वाकई इसके पास कोई उलमा की डिग्री है? अगर है तो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई ने हमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि मुफ्ती समर जो है वो मुझे गालियाँ निकालता रहता है, लेकिन वो मुझे गालियाँ नहीं निकालता बल्कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान और हदीस को गालियाँ निकालता है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो जो भी बात करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं और उसके वो हवाले भी देते हैं। अब जिस चीज़ के बारे में उसने ये वबाल मचाया मुफ्ती समर ने कि इंजीनियर कहता है कि बाबे तशाई कोई नहीं, अम्मी ते अबू तशाई कोई नहीं, अब उस चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन जो है वो अली भाई ने बड़े ही अच्छे तरीके से की। उन्होंने कहा ये तो कुरान और हदीस में लिखा है कि तुम में से जब तक मैं आप लोगों के माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊं तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हमारे लिए इतने अजीज़ ना हो जाएं कि वो हमें हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ हों तब तक हम एक मुसलमान नहीं बन सकते। तो उस पर जो है अली भाई ने कहा था कि इसमें तो ईमान की, अगर हम ईमान को लेकर आएँ तो ईमान का जो पहला हिस्सा है वो अल्लाह ताला को एक मानना और दूसरा हिस्सा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना है। जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप से ज़्यादा उसको तरजीह नहीं देंगे, तब तक जो है वो हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। तो इसी सिलसिले में अली भाई ने कहा था कि अम्मी अब्बू तो शय ही नहीं है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है अली भाई ने जो एक्सप्लेनेशंस दी क्या वो ठीक है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शेखस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।